Yes, sir. Open your browser. Search for OS Forensic. This one, sir. The first one. Click on it. Yeah, open it. So this was forensic down. It's actually give a direct link to go to the download section. Okay. Yeah, this one. Click on it. See. So everyone, please download this. Sir, you told to perform that two tools. सर दैट ड्राइव स्पाई तो अवेलेबल नहीं हो बोलते हो तो डॉस एप्लीकेशन है बोलते हैं ड्राइव स्पाई चल नहीं रहा था तो ड्राइव स्पाई है ही नहीं उसका मिलना लिंक तो मैंने जब उसका पढ़ा थोड़ा कंटेंट तो बोल रहा है इट्स अ डॉस एप्लीकेशन और वो रेड लाइन हाँ सर रेड लाइन हो रेड लाइन चला हाँ सर कर दिया रेड पूरा से चला है परफॉर्म किया हाँ परफॉर्म किया सर मतलब पहले गलती से कॉम्प्रिहेंसिव वाला कर दिया था तो उससे सिस्टम हैंग हो गया फिर मैंने नॉर्मल स्टैंडर्ड कलेक्टर वाला किया ठीक है उसका भी है उसके जिप फाइल है बेसिकली उसे एक्सट्रैक्ट करके चलाते हैं तो काव्या आर यू डाउनलोडिंग दिस check it out yeah it is on Yes, sir. okay Hello. yeah hello Yes, sir. I'm downloading. okay let's back to the topic okay so basically ये जो platform दिख रहा है this platform is basically OS Forensic okay this is the tool of Forensic okay OS Forensic basically operating ऐसा खुलेगा वो yeah tool maximize it okay so here you can see too many sections are available okay it's like auto track create case manage case report generate report view case okay so these things are also available at the left side of the panel okay start auto track manage case okay so one by one go for each one okay so auto track what is in auto track let's check it out so it seems like what sir live acquisition obviously is asking for the path where you want to store those data okay which you will extract from here okay yes sir so make one path hello sir can I know what you are teaching okay hi ma'am how are you fine sir you are exact on 5:30 huh yes sir I told na yeah it's okay so basically we are just started right now okay and this is that OS Forensic tool okay which okay. I think I was told in an earlier class also and there was one tool related to a window forensic and which was OS Forensic okay yeah so first of all you just download this tool from your browser write down OS Forensic download okay just show her Ashish once again so here you can write OS Forensic okay and this the first one okay pass mark OS Forensic go for this one OS Forensic download okay directly it will this type of platform one minute guys just 1 minute huh?
हम लोग की मीटिंग आ गई है एक्चुअली, सडनली बुला रहे हैं तो लीव इट, देखेंगे अगर फिर से बुलाएंगे तो। ओके, so this is basically a platform where we can, okay ma'am, so you understand where to how to download? हाँ सर. Okay, so this is basically the platform while opening it. Okay, and in this the first one is what? Auto track, in which we can just provide a path to it. Okay, where we can save all the data which I fetch from this tool. Okay, so okay, so path दे दिया आपने आशीष? Yes, sir. Forensic auto track. Okay, then start scan, go for the start scan. There are some बस सारी मेमोरी डंप करेगा. हाँ, आपने जो पाथ दिया है वही करेगा वो बेसिकली, ठीक है. ओके, इसको होने देते हैं. गो फॉर द नेक्स्ट वन, मैनेज केस. हेलो हेलो हेलो, हेलो आई एम जी सर. ऑडिबल? हाँ हाँ. आशीष, रिस्पॉन्स. ओके, आशीष डिस्कनेक्ट हो गया. लेट हिम जॉइन. So sir, when we download this OS forensic tool, we can use that only for one time for our system. Yeah, this is only for one time. Okay, so after if you want to use permanently, you have to purchase it. Now Ashish have downloaded it. He can't use that again. You can't use it again. Yeah. He can't try. लेकिन सर फिर अनस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करेंगे तो फिर यूज कर लेंगे. नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको नहीं तो ओल्डर वर्जन देगा, ठीक है, जो उसका पुराना वर्जन है. अदरवाइज पहले चीज तो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की एक कॉन्फ़िगरेशन को फेच कर लेता है, ठीक है. मींस वो फिर से उसमें डाउनलोड होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं बनने देगा. अगर आप चाहोगे कि दूसरा विंडो डाल के भी डाउनलोड करो तो भी नहीं होगा, ठीक है. वैसे अब ये क्या, व्हाट हैपेंड प्रशांति मैम? हेलो सर. No sir, nothing, just disturbance. ओके, ठीक है. तो ये बेसिकली वन टाइम में आप डाउनलोड कर सकते हो इसको. हेलो सर, वापस आ गए. व्हाट हैपेंड आशीष? सर, पीसी ran into a problem. ओके ओके. सर, इसी की गलती है, किसी की पता नहीं मेरे को. स्टार्ट स्क्रीन का बटन था. Academic education. No, there is no mail. ओके, सो इसे होने दो, तब तक नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है. क्रिएट फॉरेंसिक इमेज. तो हियर वी गेट द ऑप्शन. हेलो हेलो आशीष, आर यू देयर? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू. और आशीष का व्हाट्सएप चैट पे मैसेज है, आई ज्वाइन इन 2-3 मिनट्स. ये तो पहले आया था. अच्छा, फिर आया क्या? तो और किस, ओके काव्या, शेयर योर स्क्रीन. Okay, sir. And this is only for 30 days. Okay, this is 30 days trial pack. Maximize it. Maximize it. सर, फिर आपने बोला सेम सिस्टम में वापस नहीं आएगा ना 30 days.
सर फिर VM से कर सकते हैं फिर? ट्राई करना। सर होता नहीं है खरीदना VM, बाय करना हो तो कितने का है ये? काफी एक्सपेंसिव है ये, आई थिंक। 799 था वो, डॉलर्स थे, डॉलर रुपीस था वो, देखा नहीं 79। $799? या तो 56,000, ऑलमोस्ट 60,000। था। नया लैपटॉप नहीं, है। ये उससे भी महंगा है शायद ये फॉरेंसिक। और लिमिट। ये 1 साल का लाइसेंस है बाय करो तो, हाँ जी, उसमें जितनी बार मर्जी यूज करो। उसमें तो आप, वो आपका है, फिर आप यूज करो 1 साल में जितना यूज कर सकते हो। ओके। सर तो 799 एक यूजर 1 ईयर, 799। हाँ, तो एक यूजर मतलब एक डेस्कटॉप पे। हाँ मतलब मल्टीपल भी यूज नहीं कर सकते। कितना बता रहा है? 799। 799 1 ईयर 1 यूजर। मल्टीपल यूजर का ऑप्शन है सर? नहीं, मल्टीपल का तो नहीं। ओके, सो सर काव्या, ओपन इट, ओपन फोरेंसिक, सॉरी OS फोरेंसिक। sir, how to remove this? व्हाट? I mean, how to this one? Uh, What you is want my to remove? screen visible? Yeah, your This screen one, is visible. nothing, sir. Uh, Maximize it first of all. sir, Yeah, the second one after before cross there is one. yeah, but I can't say. What happened? सर एक्चुअली वो प्रेजेंट करें तो स्क्रीन के ऊपर वो आता है, उसको दिख नहीं रहा हो। Okay, okay, okay. वो जूम दिख के रहा तभी वो हमको नहीं दिख रहा हो, बोल इसको हटाना है। Okay, कैसे? okay. Don't worry. Left it. Okay, left it out. Okay, so go for the auto trigger, auto trigger. So auto trigger is basically what it was already done by Ashish. So go for the next one. Okay, create forensic image. You can create here a forensic image. Okay, add device. Go for the add device. ऑटो ट्रैक में, ऑटो ट्रैक Cut out for first of all, just cancel this auto track. It is open. Yeah, cancel out from the corner. Not that one. Not that one. Not that one. Sir, कंटिन्यू। Cancel this auto tag from the cut, or close it from the close section. It is written down. The inner cross, yeah, the cross on this box on the top right. Yeah, yeah. Now go for the add device. No cache open, please open or create a cache case. Okay, for this you have to make one case first of all. So in manage case you have to create one case for this. Okay. So after that, in that case, in that particular case, you can add any device in it. Okay, just like some outer logical device. Okay. 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 Then there's an option for boot virtual machine, file system browser, file viewer. Go for the file viewer. Yeah. File viewer file select. It's a simple thing. It's showing the file. Okay. Close it. System information. So this is basically showing information related to system. Huh? So on the upper section, device to scan. Okay. Able to see? Device to scan. Yeah, the upper part. Yeah. So go on that arrow section. Yeah, which was, click on it. Click on the arrow. Device in case system drive. Okay, CD. Go for the D1. Scan. Yeah. Yeah, selected device is unavailable. Original image may have been moved or deleted. Okay.
No. Go select some other one. Device and case system drive. सैटिस्फाई गया सर। क्रैश कर रहा है क्या ये? हाँ सर, क्रैश कर रहा है। Okay. लगता है सर विंडोज 10 और 11 ने बना नहीं। ये 11 पे चला रहे हो आप लोग? काव्या, आर यू यूजिंग विंडो 11? सर मेरा तो 11। No, sir. It's window 10. Hello? Hello. It's window 10 or 11? Sir, I don't. I think it's 11. While seeing your screen, it seems like it's 11. Share your screen once again. Okay, sir. उसका स्टार्ट मेनू का आइकन से पता चल रहा है। 11 है सर। इसको अनइंस्टॉल करके ओल्डर वर्जन ट्राई करें। ओल्डर वर्जन ओके करो ट्राई एक बार। इंस्टॉल अनइंस्टॉल मत करो, ओल्डर वर्जन एक बार इंस्टॉल करो, इसी के ऊपर देखो होता है। गो फॉर द मेमोरी व्यू। Forensic the memory will show the active memory of the computer that OS forensic is currently running on. It cannot be used to show any information by drive or image. I understand and okay. Go for I understand. Take on the I understand. Yeah. Okay. So this is basically the process which are running in the background of the laptop right now. Okay. Scroll down. No, not that. Just scroll from your mouse pad on this. Click Sorry, on. sir? Click any of it. In this. Okay. Yeah, that one. Okay, stop. Click any of it. ssoptimize.exe, ssoptimize, ss laptop ss का है आपका? Is your laptop is of SS company? Asus. Yes, sir. Yeah. Right click on it. Jump physical memory to disk, copy entire row, copy value. No. Just okay. Leave this. Static analysis. Go for static analysis. Upper one. No, not in that one. Yeah. Add memory image to case. Okay, here you have to add something. I don't think so you have any image. Okay, so leave this also. Go for the next one. User activity. तो ये बेसिकली उसमें आता है आई थिंक, जो पेड वर्जन होता है। एक बार फेच करते हैं डिवाइस टू स्कैन। गो फॉर द डिवाइस टू स्कैन। अगेन सेलेक्ट सम Is there any data in this or it's a new computer? नो, डेटा तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन Because most recently used भी 0 आ रहा है वर्ड में। बेसिक क्योंकि ये जो है ना पोर्शन, ये यूजर एक्टिविटी का, ये पेड वर्जन में आता है। ठीक है, तो ये अभी शो नहीं कर रहा है। ओके, कोई डिस्कनेक्ट हो गया क्लास से, कौन हुआ? प्रशांति मैम। ओके, so just make one quick scan, maybe some data we can fetch it out from here. Performing scan. सर इस एनालिसिस में जो अभी हमने डाउनलोड किया, व्हाट विल इट कैच? Okay, it is right now it is analyzing something. Sorry मैम, क्या बोल रहे थे आप? फिर से बोलो।
ये जब भी हम स्कैन या कुछ रन कर रहे हैं, इसमें क्या पकड़ेगा? सारे जो OS एक्टिविटीज जो परफॉर्म हुई है ना बेसिकली, देखिए अभी देखते हैं हम। लेकिन हम उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गो फॉर द ब्राउजर हिस्ट्री. ओके, ब्राउजर हिस्ट्री. Able to see? No, in the shadow, Kavya, in the shadow middle section, middle box. Browser history below, yeah, below. That Yeah. one. Yeah. No, little above. Okay, just wait for a moment. Profit? No, I don't think. Did you click on browser history? Actually, right now it's completely opening. Okay. Oh, yeah. Go for the most recently used. Yeah. Click on it. So here you can see what the things are basically done. Okay. So you can see he just fetched one path, that is C user Kavya document. Okay. And here he or she worked on some VLAN.pkt. And the time is what? 8/6. Today is 8. Yeah. 2020. So I think इसके आगे टाइम भी दिखाता है इसमें. ठीक है, थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं तो just maximize this if it is possible. लेकिन सर सस्पिशियस इसमें कैसे पता चलेगा? हम एक एक आइटम को देखेंगे to know whether I did it or not. Obviously आपको पूरा फेच करना पड़ेगा इस चीज को. ठीक है, जैसे क्या करते हैं आप, इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकते हो. ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री में जो चीजें आपने डिलीट कर दी है वो भी इसमें दिखेंगी प्रॉपर. ठीक है, क्लियर. मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो आप ये बताओ मोस्ट रिसेंटली यूज्ड आपको सर्च अगर करना है तो कैसे करोगे इन योर लैपटॉप? इफ यू वांट टू सर्च फॉर अ मोस्ट रिसेंट यूज्ड, what the things are basically used, what type of work was done in this. Okay, so how can you go for it? So in OS Forensic basically we can search it out, what the things are basically performed in your laptop. Okay, so here you can see like 4th 5th number पे इन्होंने sys internal suite.jpg इंस्टॉल किया है. ठीक है, जो कि आपका 8/6/2013 को किया है. तो 2023. आशीष आपका हो गया क्या? इज इट योर लैपटॉप ओके? ओके मतलब सर चल रहा है, मतलब अभी फॉरेंसिक चल रहा है, वो फॉरेंसिक और फॉरेंसिक इंस्टॉल कर सर डाल रहा हूँ. अच्छा, इंस्टॉल ही कर दिया आपने. ठीक है सर 2 डाले, दोनों ऐसी सेम थे. एक्चुअली ये फुल स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहा है ना, तो उसमें सारी चीजें नहीं दिख पा रही हैं. ये कौन सा सर? ये मेरे, अगर ये इसमें चल रहा है तो ये चल जाएगा मेरे से शायद से. है क्या? लेकिन Kavya, you didn't get the sign of maximizing this. सर उसको साइन मिल रहा है, लेकिन वो मीटिंग कंट्रोल्स होते हैं ना, उसको हटाने नहीं हो रहा. वो उसके ऊपर आ जा रहे हैं बेसिकली. वहां पे देयर इज वन एरो टू गो डाउन. ओके, सो द मीटिंग कंट्रोल विल गो डाउन थ्रू दैट एरो. The arrow was showing downside at the corner of that blue green section. Okay, leave it, don't worry. So user activity. Scroll down in this. Yeah. Okay, you got it out. Sir. You got it out. Okay. So there is one slider downward. Okay, so slide that one. Sir, where? At the bottom portion, you can see one slider is there. Okay. Yeah. Just like at your right side, there is one slider to scroll down. To see the right side of this data, no? So move your slider to the right, the bottom slider. No, you're pulling it down. Horizontal one, जो नीचे है नीचे. You see on the top your window user. After window user evidence, how do you go there? How do you see the right column? Scroll so the down. bottom slider, the bottom scroll, take it on the right. Actually, she can't able to see the bottom slider. सर मेरा स्कैन हो गया सर, प्रेजेंट करूंगे. हाँ ओके, आशीष तुम प्रेजेंट करो. ठीक है, ओके काव्या, थैंक यू फॉर दिस.
स्लाइडर में इतना ही है सर, ज्यादा है। इसमें टाइम दिखा रहा है ना, हाँ देखो यहाँ पे डेट लास्ट एसएस, ठीक, ओके। आशीष एविडेंस लोकेशन को एक्सपेंड करो, उसका राइट बार एक्सटेंड करो। व्हाट? एविडेंस लोकेशन विंडो यूजर को तो छोटा कर दो। ऊपर जो एविडेंस स्लाइड बार, लोकेशन? नहीं नहीं, ऊपर जो यही वाले जो ऊपर विंडो यूजर है ना, विंडो यूजर जाओ, विंडो यूजर पे, इसी ऊपर टॉप पैनल में आइटम कैटेगरी पाथ डेट लास्ट एक्सेस विंडो यूजर है ना, अच्छा, विंडो विंडो यूजर यूज। को छोटा कर दो ना, नहीं इसको छोटा कर हाँ दो ना, एविडेंस लोकेशन बड़ा कर दो। हाँ, ये दिखना चाहिए ना कि लोकेशन कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो यस द लास्ट वर्क वाज OFS. It is OS forensic tool, okay, which was downloaded by at the path Z/installation media, okay, and the यस सर, time date was given here 8/6/23/17/40/44, okay. यस जो सर। जो विंडो के ओनर है उनका नाम आशीष है। एविडेंस अच्छा लोकेशन सर, यू कैन, यहाँ पे क्वेश्चन है, विंडो ओनर का जैसे इसका तो पूरा आशीष नाम आ रहा है, तो यहाँ पे अगर किसी और ने एक्सेस किया होता तो वो यहाँ पे भी दिखाएगा ना? डेफिनेटली दिखाएगा, एंड उसी के स्पेशली हम वही फेच करने के लिए इसे देख रहे हैं, ठीक है, कि ओके। क्या कोई और यूजर हम वर्क करा है इस पे, तो बेसिकली जो यूजर्स हैं, विंडो यूजर्स हैं, उसमें आपको शो कर देगा, ठीक है। तो अगर किसी के लैपटॉप पे कोई और यूजर्स है तो वो चेक कर सकता है बेसिकली, ठीक है, दे कैन चेक मेरा इट आउट फॉर दिस। मेरा तो सर एक ही हुआ है। तुम्हारे पे बस तुम्हारा यूजर है, ठीक है। तो और क्या क्या चीजें इसमें देख लेते हैं, जो जो चीजें आपने करी हैं, मीन्स जो लॉग्स क्रिएट हुए हैं बेसिकली वो सारे आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। यस जो जो सर। फाइल इन्होंने ओपन करी है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, ओके। एट व्हाट टाइम ही यूज्ड ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर डंप समथिंग यूज फॉर द so that also save in this, okay, यस which सर। was done on 1/6/2023 and the time was also here. यस सर। And the evidence location, okay, means in registry where it is saved, the location was also given here, okay. यस सर। दी मटेरियल्स। Okay, so fetch the another one, installed program. This is mostly recent user. So these are the installed program inside it, okay, and at what time it is installed, the time is also given, installed path is also given, okay. यस सर। ओके, ये यहाँ पे विंडो यूजर यानी दिखा रहा है, आप गेस्ट से डाउनलोड करे हो क्या इन्हें? नहीं सर, डाउनलोड उसके लिए कहता, मैंने इंस्टॉल सब प्ले किया है, ऑल यूजर्स इंस्टॉल किया ना ये सब चीजें। यूजर्स क्यों नहीं शो कर रहे इसमें? तो इसमें क्या है सर, टेलीग्राम मैंने सिर्फ अपने यूजर के लिए इंस्टॉल किया था। बाकी इनमें ऑप्शंस आते हैं ना सर, बाकी इसमें कि यूज फॉर दिस मशीन और फॉर ऑल यूजर्स वाले, तो मे बी ओके ओके, उसके दैट्स लिए फाइन। एन ए आर हो। Okay, so then go for the next one, auto run रन command. So these are the auto runs command in which OneDrive, okay, so these are the commands which were actually running in your background. Steam, security, health, okay. So these are the things basically which your if you open your taskbar, okay, so these things are completely enabled in that. Maybe sir. Go for the last, yeah. ये तो disabled है सर, Disabled, OneDrive enabled है। enabled है, OneDrive इसमें दिखा रहा है। There is one WAV migrate. RTK जो भी थे, RTK सराउंड, रियल टेक सराउंड। That security health is also here. अब WAV कैसे होगा पता नहीं। ओके, इसके अलावा भी जो कमांड वो हैं आपके, वो चल रहे हैं इसमें दिखा रहा है, ठीक है। मींस जो चीजें इसमें आपके टास्क मैनेजर में नहीं दिखा पा रही हैं वो भी चीजें यहाँ पे दिखा रही हैं। क्लियर? यस सर। ओके, सो इन गो फॉर द इवेंट लॉग, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। So here you can see all the events basically. So आपकी मतलब इजाजत के साथ इसको चेक किया जा रहा है, ठीक है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, ग्रेट। स्क्रॉल डाउन।
Okay, click on any of it. Just see if there are any more options related to this. Open with internal event log viewer. Okay, click on this. Okay, it is showing the correct path. Event log viewer. Okay, cancel this. These are the security functions which are working. Okay. Yes, sir. Okay. Event ID is also present here. Event record ID. Scroll right. Right, sir. Yeah. Event informations, user. Okay, here are some other users also. Who are they? One is system. Okay, this is internal user. सर ये भी इंटरनली होगा कोई सिस्टम 32 से. There is one Hotmail ID, Ashish Singh Rawat @hotmail. Yes, sir. So it's your? हाँ सर, वो भी मेरी है. Okay. Scroll down. Okay, तो ये सारे इंटरनली है बेसिकली. ठीक है. ये सर वो इनबिल्ट वाले होंगे. कोई अटैक नहीं परफॉर्म हुआ यहाँ पे. डोंट वरी. ये है ना सर, कनेक्टेड यूएसबी सब दिखाते हैं. हाँ, ये राइट साइड पे इवेंट इंफॉर्मेशन क्या था? ये इवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सपैंड करो ऊपर से. अकाउंट नेम, अकाउंट डोमेन, लॉगिन आईडीज, लॉगिन टाइप, और उसे एक्सपेंड करो. और भी चीजें उसके. एक्सपेंड दिस साइड. ऐसे तो सर होते हो. लॉगिन है ना तो सब होगा एक ही बार. So is it providing your password also? I don't think so. पता नहीं सर. Maybe in password section it will provide it out. हाँ. है क्या सर पासवर्ड सेक्शन? Okay, so search for the next one. User assist. I have a question. Normally in ethical hacking, we have something called as privilege escalation and all. In that, after attacking a system, at last they'll be clearing the logs. Okay. We have a process of clearing logs there. They'll be going to the same event manager and. So how to clear? By using some commands and all, they'll be. Suppose if I am the attacker of your system, then I'll be taking command of your system. From my system only, I'll be clearing the logs. I'll be writing one command so that the logs that are created in your system will be deleted. If the log is present in your registry, window registry, then you are able to see here, okay? And if it is deleted registry, if it is deleted, then we can't see. So you are not attacker will be. So attacker, suppose someone attacks on my system, they'll be they attack my system and they'll do some changes in my system. While going out, they'll be clearing the logs and then they go out. So we can't see the deleted logs. Isn't it? A chance, but ये परफॉर्म करना पड़ेगा. I have to check it out for this. But what I know कि maybe OS forensic आपको provide करा दे उसके बाद भी. ठीक है. Because OS forensic का जो paid version है. Yes. I think you have done with ethical hacking. No, just introduction with ethical hacking. Introduction is only done. Okay. No, but अगर ethical hacking भी होती है, as Prashanti ma'am is saying, तो वो जब उसने लॉगिन किया और लॉग में भी all the logs are deleted, but उसका कुछ footprint तो रहेगा ना that somebody logged in.
वो कुछ तो नहीं, OS बहुत forensic कुछ में मिल भी जाएगा। होगा। अगर मान के चलिए वो लॉग डिलीट No, करते no, हैं, ठीक है? they'll delete the logs. Actually, that is the Ethical how they hacking. will be attacking the system. हम्म। That is how they'll तो be attacking the system. They'll be deleting the logs and then they go away from the system so so you that can search it they'll out not from the found network that. section. Okay, there is some network through which they got connected with your laptop. Okay, so you can fetch it out from That that section. Okay, okay, that is okay. But That here we can't see, I think, in this. but what I know, in paid version of OS Forensic, you can see all the things after deleting also. Okay, या बिकॉज सम फुटप्रिंट तो रहेगा ना, जो उस कंप्यूटर पे जो भी आया उसका एक फुटप्रिंट तो आएगा जरूर। चांसेस है। There will be some, वेल मैं सर इसमें जो चेक आप कह करता रहे हूँ, हैं ठीक है? वेल नेटवर्क क्वेश्चन अच्छा है ये। नेटवर्क फॉरेंसिक्स, नेटवर्क सर फॉरेंसिक जो है, आपने जो बताया सर, फिर एंटी फोरेंसिक के हिसाब से सर वो डिपेंड करता है कि अटैकर कितना इंटेलिजेंट है। एग्जैक्टली। Yes, sir. अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, कोई कोई मतलब अपना काम करके छोड़ देता है, किसी को पता भी नहीं होता कि लॉग्स नाम की चीज भी होती है। एग्जैक्टली। वो डिपेंड करता है उस। नहीं पर आई मीन जो बिल्कुल ट्रेंड हैकर हो, वो आपके लैपटॉप में घुस के कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा और लॉग्स क्लियर करता रहेगा, वो आपके पूरे हार्ड डिस्क को कॉपी कर देगा धीरे धीरे। कर सकते हैं। हाँ No, वो no, पूरा I guess here we need to have a tab like deleted event logs, then we can get them. And we don't have a tab like that. We have only event logs. We don't have a deleted event logs. Here सर you can't make any change in this. Only you are able to see this. Okay. Not change, sir. No, Here we she's have saying some कि ये जो tabs option left yeah, side. on the One by left one. side she's saying ऑप्शन होगा तो हम वो निकाल सकते हैं। But we don't have an option called deleted logs. अब सर उसके लिए तो एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम चाहिए होगा, तब पता चलेगा। हाँ, इस पे फुल एक्सपेरिमेंट कर सके। हाँ हाँ सर। तो ठीक है, मोना मैम का नया लैपटॉप आ रहा है, उस पर ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सर पुराना लैपटॉप होगा। पुराने वाले की बात मत करो भाई। Okay, so go for the next one. There is one a jump list. Check it out. What the things are available in this. What is in user assistant? सर यूजर असिस्ट Microsoft vendor control panel. Okay, there are some locations present here, like in Z, C, user, Ashish, OneDrive, desktop, OS forensic link. सर मेरे ख्याल से जो लास्ट चीज एक्सेस करी थी वो बता रहे हो। It is again showing that और एक काउंट मेरे ख्याल से कितनी बार लिख के, जैसे सर विंडोज एक्सप्लोरर taskbar file explorer dot link. Okay, हम्म next one, second one. Z watchdog bin watchdog.ext. हाँ सर। Okay, just go for the next one. These are also the logs basically. This is what? जंप लिस्ट। सर जंप लिस्ट हम मालूम, ये तो अभी रिसेंट हुआ है क्विड। So here it is like Whisper Tools security. It seems like something like security line and red line analysis. सर इसमें नीचे ब्राउजर हिस्ट्री है। हाँ Download. है वहीं पहुंचेंगे अभी धीरे धीरे। हाँ। ठीक है, go for the next one. Shellback. शेलबैक सर कम होंगे, शेल्स यूज ही का करते। ये हो गए सर ये शेल, Sessions ये अभी आज रिसेंट यूज किया था शेल्स। means जो भी आपने recently perform किया है वो basically यहाँ पे show हो रहे हैं। हाँ सर Okay. मैंने परफॉर्म किया, ये मतलब हमने कोई एप्लीकेशन यूज किया, उसने परफॉर्म किया, तो सब उस आता है। each and everything. राइट क्लिक करो इस पे किसी पे, देखो कुछ और इंफॉर्मेशंस निकलती है। ओपन रजिस्ट्री फाइल। नाइस। वो सर अब कंप्यूटर का लैंग्वेज उसको समझेगा। हैश फंक्शंस दे रहे हैं। हाँ हेक्स कोड है सर, उसको ही समझेगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट वन। सर दिस विंडोज 10 टाइम है। ये भी सर GUID बता रहा है।
zoom.us. Okay, it's all telling about Zoom message. Go down. ये सब अभी रिसेंट किए सर। तो ये ब्राउजर का बता रहा है, ब्राउजर का बता रहा है या फिर डाउनलोडेड है? आई थिंक ये एप्लीकेशंस का बता रहा है जो रन हुई हैं। हाँ, टाइमलाइन मतलब टाइम से रिलेटेड बता रहा हूँ सर। फाइल ओपन की थी या क्या की थी, फाइल का नाम क्या था? एक्टिव आईटीज, एक्टिव टाइप एक्टिविटी आईडी, एक्टिव टाइप, 6 एप्लीकेशन फोकस। ये भी बता रहे कॉपी किया है कि पेस्ट किया। यूजर एंगेज था उसके टाइम या नहीं था। देख रहे हो कहीं ना कहीं ये ईच एंड एवरी मतलब बहुत टाइम ज्यादा जोन, डिटेल। टाइम जोन बता रहा है, इस शक्ल कटा का है, ठीक है। प्लेटफॉर्म आईडी, लास्ट मॉडिफाई, एक्सपायरेशन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। एक्सपिरेशन टाइम, ओके, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, एक्टिव ड्यूरेशन। एक्टिव ड्यूरेशन इन सेकंड्स क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन या नो है सर, मेरा बंद करके रखा है सर। और स्लाइड करो, लास्ट में क्या है? लास्ट में सर लोकेशन होगा, पाथ है, लोकेशन ऑफ फ्लेक्स। ठीक है, पाथ बता रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है। रिसाइकल बिन में क्या है? जो सर आज डिलीट किए थे, आज मतलब थोड़े दिन पहले। 11 आइटम्स देखना, चेक करना अपने रिसाइकल बिन में 11 आइटम्स है। सर नहीं है, बहुत पहले डिलीट किए थे। रिसाइकल बिन क्लियर है? यस सर। ओके, तो मतलब रीसेंट में है बेसिकली, उसे ओपन करना, देखते हैं कब का है ये, टाइम इसमें दिखा रहा होगा। ओके, 23/3/22/2023, 23/3। लास्ट आपने 23/3 में डिलीट किया है सारी चीजें? नहीं सर, आज भी किया ऐसे तो। मेरे ख्याल से उसको मिला होगा तो उसने बता दिया। ओरिजिनल फाइल नेम मींस जो उसने फेच कर पाया है वो बता रहा है। हाँ, रिसाइकल। ओके, जरा से चेक करो एक बार राइट क्लिक करके कि क्या ये वो हो रहा है। एक्सपोर्ट लिस्ट, एक्सपोर्ट करना है सर। लिस्ट ऑफ ऑल आइटम। है, इधर से खोलता हूँ ना। एक बार पाथ चेक कर लो, देखो वहाँ पे अवेलेबल है। नहीं सर, एम्प्टी है ये पाथ ही नहीं है। सर। सी यूजर यूजर डाउन, आशीष डाउनलोड, सी में होगा ये आई थिंक। यूजर डाउनलोड, सर वही फोल्डर आएगा ना सर, डे डाउनलोड भी वही है अच्छा, सर। हाँ हाँ, घुमा फिरा के तो ये यहाँ नहीं है, ये इंटरनली फेच किया है इसका मतलब। हाँ, हम्म, डाउनलोड में फिर टेलीग्राम, एक मिनट, डाउनलोड से ये, तो ये वही था। सर डाउनलोड ही होता है। हाँ हाँ, डाउनलोड से होता है। टेलीग्राम डेस्कटॉप का फोल्डर है सर। बहुत पुराना है सर, मतलब मे बी उसके पास पड़ा होगा। खुल तो रहा है सर। ओपन तो हो रहा है ये। खुल नहीं रहा सर, नहीं खुल रहा। हम्म, देखो ना सर, एरर लोडिंग जो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है। बाम डाम, ये क्या होता है? बैम बैम डैम सर, मालूम नहीं मेरे को। किसी को पता है? सर इसको पता होगा ना। बैकग्राउंड एक्टिविटी मॉडरेटर। BAM, ठीक है, चेक करो उसमें, देखो ये में बैकग्राउंड में सर क्या क्या चीज़ें। विंडोज सर्विस कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बैकग्राउंड बैकग्राउंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस या तो इसमें बेसिकली वो सारे मूवमेंट्स बता देते हैं जो आपने परफॉर्म किए हैं अपने लैपटॉप पे। हाँ, हाँ मीन्स सर, जैसे उसने टेम्प टेम्प फाइल खुद बनाती वो सब बता रहे आप इवन कोई चीज़ पे वॉच करते हो, मूवी वॉच किया, फिर कुछ भी सॉन्ग, एनीथिंग, सो ये सब कुछ बता देता है, ठीक है। बस आपको फेच करना आना चाहिए ढंग से, इसे देखना आना चाहिए, ठीक है। हैं। हाँ सर, ये है ना, स्पॉटिफाई खोला तो अपने बता के। स्पॉटिफाई खोला था इन्होंने, देखो स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सुनी थी इतने बजे, इस दिन को इतने बजे सुना था, ठीक है। तो ये बता दे रहा है इसके बारे में भी। यस सर। डिवाइस, हार्ड डिस्क, वॉल्यूम, ओके, ठीक है, थोड़ा और स्क्रॉल करो नीचे, खत्म हो गया।
डाउनलोड में 11 आइटम्स हैं, जिसमें पहला ओएस फॉरेंसिक दिखा रहा है, जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले किया है। तो टाइमिंग क्या दिखा रही है इसकी? 8/6/2023 अभी की है 17:40। ओके। अभी की है। और डाउनलोडिंग स्टार्ट कब हुई थी और एंड कब हुआ था, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सो 40:38 पे शुरू हुआ था, 41:31 पे खत्म हो गया था। ठीक है। सोर्स भी है सर, कहाँ से डाउनलोड किए? सोर्स भी गिवन है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, सोर्स। ठीक है। मॉड्यूल 6 विंडो फॉरेंसिक। ओके, ये देखो मॉड्यूल 6 विंडो फॉरेंसिक में इन्होंने व्हाट्सएप से व्हाट्सएप डाउनलोड से किए। जो डाउनलोड किया है। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करना, बात को, इसके पूरे सोर्स को। ऐसे नहीं हो रहा ना। ओपन यूआरएल है ना सर, इधर ही जाएगा। हम्म। ये डायरेक्ट मुझे लगता है व्हाट्सएप पे ही लेके जाना चाहिए इसे, क्योंकि लास्ट में इसके जियो आईडी भी दे रहा है। फाइल नॉट फाउंड, इस पे जाते हैं फिर सर। ये तो है ना पड़ा इधर ही। स्टिल द सेम। ओके है ना सर, ऑटोमेटिक डाउनलोड ओके स्टार्ट ओके कर ओके, दिया। ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जा रही है। ये इसलिए नहीं हो रहा होगा सर, अभी व्हाट्सएप लॉग्ड इन नहीं। हाँ, हो सकता है मे बी। यस सर। व्हाट्सएप लॉगिन रहता तो वो डायरेक्ट फाइल डाउनलोड स्टार्ट करना होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ। यस सर। So okay, so this is basically the section where all the download portions are available here. Okay. यस After सर। that, the next one is browsing history. What he browse in it, all the things are available. Either it is deleted from there or not. Okay. ये सर कल का है ये सर। तो आपने कुछ डिलीट किया है क्या ब्राउजिंग हिस्ट्री से, ब्राउजर हिस्ट्री से? नहीं सर, लास्ट कब का दिखा रही है लास्ट? ये तो सर वो है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये बुकमार्क्स हैं तो। तो लास्ट की दिखा रहा है 6/6/23 6/6/23 का दिखा रहा है, which is okay, it's some path type thing. Okay, scroll left. सर ये वो है माइक्रोसॉफ्ट, कौन सा वो जिस पे वो देखते हैं, टीम्स। तो एवरीवन समझ में आ रहा सबको? ऑल आर गेटिंग दिस? हेलो हेलो, Yes, sir. is it clear to everyone how OS forensic is working? Here you can basically search. ब्राउजर हिस्ट्री में तो अगर को जैसे प्रशांति मैम पूछ रही थी कि अगर कोई लॉगिन करके अपना पूरा फुटप्रिंट मिटा, ही हैज इरेज्ड एवरीथिंग, देन इन दिस ब्राउजर हिस्ट्री एटलीस्ट सम लॉगिन विल शो, नो? इसमें तो ब्राउजर हिस्ट्री में वो दिखाएगा जो आपने ब्राउज किया है। ठीक है। और ये जो आपका फर्स्ट वाला था ना, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, इसमें आपका इवन इसमें भी दिखा सकता है यूजर असिस्टेंट। देन किसमें चेक किया था हमने जो यूजर्स दिखा रहे थे? यूजर्स, यूजर असिस्टेंट में जाओ। तो बेसिकली मतलब जो जो लॉगिन हुआ है या फिर कोई यूजर ऐसा लॉगिन हुआ है, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड में जाओ, उसमें देखो क्या क्या है। यूजर Basically असिस्टेंट जो फाइल्स खुली है वो दिखा रहा है, जिस जिस फाइल को यूज किया गया है। हम्म। और यूजर असिस्ट पे क्लिक करो एक बार आशीष। अब इसमें जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, गो डाउन, लेट्स स्टॉप हियर। जैसे बीच में एक जेड ड्राइव आ गई, जेड डेट्रॉइट, बिकम ह्यूमन, अनस्टॉल। तो ये हम ऐसे देख सकते हैं कि ये तो मैंने नहीं खोला था, तो ये कौन है? लेकिन विंडो यूजर आशीष दिखा रहा है ना, वो तो मेरा ही दिखाएगा। अगर आशीष का लैपटॉप है तो आशीष ही दिखाएगा ना, हैकर का नाम तो दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? हैकर एंटर करा है तो हैकर अपने लॉगिन करा होगा ना, तभी तो एंटर किया है। पर इसमें जो आपकी आईडी में आइटम्स कैसे? में, लेकिन अगर मैं इसको ब्राउज करूंगी, इफ आई एम द यूजर और मैं ब्राउज करूंगी, तो आई कैन सी कि ये वाला जेड वाला तो मैंने क्या कहते हैं, पार्टीशन खोला ही नहीं था। या सी यूजर पब्लिक डेस्कटॉप खोला है। तो जो Will खोला that- होगा बेसिकली वो अपने यूजर आईडी से खुला होगा ना, तो उसका जो विंडो यूजर्स है बेसिकली वहां पे उसका नाम user ही दिखाएगा आ ना। जाएगा। अगर अच्छा, उसने मेरे क्रेडेंशियल से खोला होगा तो मेरे ही नाम आएगा।
ओके अगर अगर इनके उसने क्रेडेंशियल से खोला होगा तो इनका नाम आएगा, अदरवाइज अगर वो हाँ, अगर अगर वो कोई खुद का आपके बना रहा है लैपटॉप तो में एंटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी आईडी लॉग इन करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे विंडो यूजर जो दिखा रहा है बेसिकली वो वहाँ पे उसका नाम दिखाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो रियल है या फिर फेक है, ठीक है। हम्म। बट कहीं ना कहीं हम इसके थ्रू आईपी एड्रेस भी स्कैन कर सकते हैं उसका, नेट मैपिंग में, ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग में, तो जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं उससे। तो ये डिपेंड नहीं करता कि नाम क्या है। तो वही है ना सर। आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस, हम्म, बिकॉज मेरे लैपटॉप में एक बार अटेम्प्ट हुआ था लॉकडाउन के टाइम। तो हम्म, तब से मेरे लैपटॉप में आना शुरू हो गया था बीच बीच में जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना, ऑन इन द नोटिफिकेशन इफ आई क्लिक इट वाज शोइंग डू यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग स्विच बिटवीन दिस कंप्यूटर एंड द अदर डिवाइस, ऐसा आना शुरू हो गया था। ओके 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 ओके। तो दैट मीन्स समबडी एल्स, तो किसी ने बोला तुम्हारा जीमेल नहीं, किसी ने तुम्हारा कंप्यूटर भी हैक किया हुआ है, ही इज सिटिंग, ही इज एबल टू सी व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो मे बी इट इज स्टिल पॉसिबल, ओके। तो वो इसमें ये दिखाई चीज देगा। ये चीज अभी भी चल रही होगी, हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो ये तो आप अपने पहले तो जो भी आप नहीं ब्राउजर मेरा तो यूज कर रहे हो। रिफॉर्मेट हुआ है उसके बाद तो नहीं आया, लेकिन पहले लॉकडाउन के टाइम ये बिल्कुल शुरू हो गया था, क्योंकि जीमेल पे भी अटेम्प्ट हुआ था, मुझे ओटीपी आया था। उसके बाद ये लैपटॉप में शुरू हो गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग दिस डिवाइस और स्विच बिटवीन द अदर डिवाइस। तो वो मैंने दिखाया साइबर पुलिस को, मैंने कहा ये क्यों आ रहा है, तो उनको समझ में ही नहीं आया। पर इससे तो क्लियर पता चलता है कि कोई और भी है जो मेरे डिवाइस को यूज कर रहा है। हाँ डेफिनेटली। तो आप यहाँ अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई यूजर आपका एंटर किया है तो आप इस सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। ओएस फॉरेंसिक हाँ के थ्रू आप ये चीज देख सकते हो विंडो यूजर्स में। तो यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है, तो, अगर कोई और तो यूजर। वही हुआ ना सर, फिर देखो ना। लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट है कि पूरे 2 साल का भी दिखा देगा? नहीं नहीं, ये जो फ्री वर्जन है ना इसमें बहुत हम्म, छोटा दिखा रहा है आपको, बट आप पेड वर्जन हम्म। लोगे तो वो आपको, देखो इसमें लास्ट कब का दिखा रहे लास्ट सर वही, ये तो कौन से साल का बता रहा है पता 2016 नहीं, नहीं। हैं 1641। पेज ट्वेंटी भी टू नहीं आ जाता। नीचे वो जाओ दिखा रहा और है, हाँ, नीचे। 29/8/2022 का दिखा रहा है लास्ट इसमें। हाँ हाँ सर, जब लिया था तब का है। हम्म। तो तब से बेसिकली अभी ज्यादा मतलब टाइम नहीं हुआ है तुम्हें, तो ये तुम्हारा दिखा रहा है। बट अगर लैपटॉप जैसे मैम का 2016 नहीं, का है। इसका मतलब आशीष तुमने ये उसी दिन लिया था लैपटॉप? अब उस उतना तो याद नहीं, बस उस रेंज लिया था, उस हाँ रेंज तो में लिया इसका था मतलब मैंने। पूरा दिखा दिया ना, इसका मतलब ये जितना इसमें डेटा था वो पूरा दिखा दिया। नहीं, तो इनका अभी ड्यूरेशन कम है ना, एक्चुअली 2 ही साल हुआ है, 1 ही साल हुआ है। बट अगर आप चेक करोगे तो जैसे आपका 5 6 7 ईयर्स हो गए हैं, तो हम्म, आपका आई थिंक ये फ्री वर्जन पूरा डिटेल ना दे, ठीक है। अच्छा। क्लियर है। सर वही हो गया ना, फिर जब जैसे पूनम मैम ने बोला कि उनको नोटिफिकेशन आया कि हम्म, स्विच यूजर का है, तो उनको पता हाँ, चल गया कि कोई और भी यूज कर रहे हैं। हम्म। तो वही है कि मतलब सर, हैकर हर चीज नहीं उड़ा सकता, कहीं ना कहीं ऐसा छूट जाएगा उससे। एग्जैक्टली उसे, ऐसे उसे, बहुत से चीजें हैं जो छूट जाएंगी उससे, ठीक है। उसने नोटिफिकेशन बंद करना भूल गया होगा, हम्म। जिससे नोटिफिकेशन ना आगे। ऐसे बहुत सी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी जिससे आप एंटर हो सकते हो उसमें, ठीक है। बस एक बढ़िया फॉरेंसिक मैन होना चाहिए उसके लिए। सर वही है कि आप पूरा तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एग्जैक्टली। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि सब कुछ मिल जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ एविडेंसेस उससे रिलेट करके मिल सकते हैं। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट वन। व्यू। यही है सर ये नेक्स्ट देख वन। लिया था, क्या है ये, सर्च टर्म। क्या क्या सर्च किया था गूगल पे, टेक्स्ट क्या लिखा था? जो इसमें आठ ही क्यों दिखा रहे हैं, सर्च तो बहुत कुछ किया होगा। एंड इट इज सेलिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है जहाँ ब्राउजर। अब यही ब्राउजर है आपके पास, और भी कोई ब्राउजर है तेरे, सर एनी अदर ब्राउजर? एक ही है सर। ओके, तो आई थिंक अगर और कोई ब्राउजर यूज कर रहा होगा तो उसमें मे भी सारे दिखा रहे होंगे। या तो सर ऐसा होगा कि 6 तारीख को, एक ट्यूसडे था ना, उस दिन मैंने वो किया था, ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट की थी। नहीं, फिर भी दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो पेड वर्जन और फ्री वर्जन का कुछ होगा सर। ये सीन हो सकता है, लेकिन दिखाता है वो। अगर आपने डिलीट भी कर दिया ना अपनी सारी हिस्ट्रीज, उसके बाद भी दिखाएगा ये पूरा कंप्लीट दिखाता है। क्योंकि हम लोगों ने एक पूरा प्रोजेक्ट इसी से करा हुआ है। यस सर। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट वन, होम हिस्ट्री 2।
What is this form history to? This form I- FR, yeah. So I identifier, सर ये दोनों तो गूगल अकाउंट है मेरे, फॉर्म हिस्ट्री दोनों क्या है वो आपके पता नहीं सर। गूगल अकाउंट है, ठीक है। सो स्क्रॉल करो इसे राइट साइड में, देखो और क्या इंफॉर्मेशन है। डिफॉल्ट प्रोफाइल, एविडेंस लोकेशन, यूजर डेटा डिफॉल्ट वेब डेटा, मे बी सर उसने सेव किया होगा जब मैं दो अलग अकाउंट से लॉगिन किए। तुम्हारे दो, यही दो अकाउंट्स है इसमें, हम्म ये दो नहीं अकाउंट्स ही चलते हैं। नहीं सर, ब्राउजर भी यूज कर रहा था ना, ये आपने माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउजर पे ये दो अकाउंट कल यूज कर रहा था। यूज करे हो, हाँ। हाँ 7/6/2023 को। कल ही यूज किए। ये कली का डिटेल दे रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो पूरे डिटेल के लिए आपको खरीदना पड़ेगा इसे। यस सर। बुक मार्क्स में देखो क्या क्या है आपके। बुक मार्क्स में सर जो वेबसाइट बुक मार्क है वही है सर। सारी है ना इसमें, हाँ ठीक सर है। सारी है। ओके, इसमें क्या होगा सर? नेटवर्क में देखो क्या क्या दिखा रहा है वीलैन में। तो लास्ट ये लास्ट बेसिकली लास्ट जितने भी वाईफाई से कनेक्ट किया हूँ। कनेक्ट किए हैं। इसमें आईपी एड्रेस दे रहा है, बट राइट जाना, गो फॉर द राइट। इज इट शोइंग द आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस? नो, इट इज नॉट शोइंग इन द फ्री वर्जन। पेड का होगा सर ये। हाँ हाँ हाँ, जो मेन चीज है वो पेड में देखा वो। मेन चीज इधर दे दी, पासवर्ड दिखाता रहे सर। पासवर्ड दिखा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये देखिए, देखिए सब लोग। चेंज करने पड़ेंगे सर आज सर। क्या फायदा, यहाँ से कौन कनेक्ट हो रहा है। So basically you can see the passwords here also, okay? The device which are connected, you can see the password of that devices, okay? सर होता है ना, क्या होता है सर ये। पासवर्ड सही है, यही पासवर्ड्स हैं? हाँ सर यही है। ओके, ठीक है, सब लोग फोटो खींच लें। Okay, so go for the next one, USB. Here you can see the USBs. यूएसबी तो सर रोज ही डाल रहे निकाल। हाँ, तो बेसिकली वही सारे USBs हैं जो आपने कनेक्ट किए हैं, ठीक है। Everyone getting this? Kavya, are you getting this? And who is this? Prashanti ma'am, is there any problem in this? No, sir. Okay, it's clear. Kavya, it is clear to you? Actually, I forgot you always and speak in Hindi, and actually only you are the girl here who can't understand. Kavya, hello. Sir, Is it clear? yes. Any problem? Any doubt related to this? No. So you can see here, these are basically the USBs, okay, which are connected through the device, okay. Is it showing the time also when it is connected and date? नो सर, आई थिंक जस्ट शो कौन सा कनेक्ट हुआ है। Okay, it is showing the serial number and okay, just right टाइम click तो on it. टाइम सर उसमें दिखा रहा था ना पीछे किसी एक। वो जो USB का नहीं दिखा रहा था, क्लियर फिल्टर यूएसबी नहीं दिखा, बस बता रहा था कि डिवाइस कनेक्ट हुआ है। Okay, go for the registry file and maybe there it is written. ये सर Yeah. हैंग हो गया सर। Very good. Not responding. लोकल मशीन हो गया सर। वो Okay, सर just wait खुल for a गया। minute. कुछ नहीं किया सर, दे रहे। So this is basically the हार्डवेयर आईडी। yeah. It's USB SanDisk 3.2 Gen 1. Okay, is it showing the storage capacity of this? Date is in date there are too many information, but it is not providing the date. फ्रेंडली नेम, ड्राइवर, कंटेनर आईडी, फ्लैग्स, UID, एड्रेस। Hardware ID. Okay. So leave it. Is there anything else? Mounted volume.
ये तो वही होगा सर, क्या जो आपने माउंटेड माउंट किया था? वॉल्यूम। यस सर। तो नीचे एक दो और आइटम्स है माउंटेड वॉल्यूम के नीचे, आई थिंक नहीं बाहर अब खत्म है हो गया उसमें। है लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। नहीं, नहीं माउंटेड वॉल्यूम हाईलाइटेड है। इवेंट लॉग्स में था सर मेरे ख्याल से। एक सेकंड, ये है सर, डिवाइस कनेक्टेड, डिवाइस डिस्कनेक्ट। और यहाँ पे नाम बता रहा था कहाँ पे, तो याद नहीं है सर। ये है शायद, ये रहा। शिट। ओके, स्क्रॉल राइट। So here it is showing the event time also, huh? Time and date. टाइम एंड डेट सर, आज Yeah, ही किया। so जब जब आपने कनेक्ट किया है बेसिकली वो उस टाइम का टाइम और डेट बता रहा है, ठीक है? यस सर। So this is also one of the important informations related to window forensic. So that which external device is connected and at what time it is connected, at what date it is connected, okay? And here the serial number is also given. So through serial number you can investigate for that device, okay? यस सर। So for example, if the pen drive of SanDisk company, okay, so you just copy the serial number and you can get more information related to that from that company. आप मिल जाएगा ना टाइम सर उसका जो भी है। यहाँ पे तो पूरी डिटेल है उसकी। एक टेस्टी नहीं सर, फॉर्मेट में। उसकी नहीं है सर, स्टार्टिंग के 10 आइटम दिखाएगा बस। ओके ओके ओके। कैन एक्सपोर्ट अप टू 10 आइटम्स, वही दिखाया ना उसका सर। फ्री में दे देगा तो सर पेड़ पेड़ कौन लेगा फिर। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बेसिकली यूजर एक्टिविटीज में, ठीक है? देन गो फॉर द पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड? या स्कैन। वाईफाई के आएंगे सर, वाईफाई यूज किए पासवर्ड से तो बस। तो और कहीं पर पासवर्ड लगा है आपके इसमें? सिस्टम पे लगा सर। सिस्टम पे लगा है, ठीक है। तो विंडोज 10 दिखा तो है लेकिन अब बता नहीं रहा वो। यहाँ पे प्रोडक्ट की दे रहा है, ठीक प्रोडक्ट है? की है। सो प्रोडक्ट की से हम कन्वर्ट कर सकते हैं पासवर्ड में। वी कैन कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट की इनटू अ पासवर्ड मे बी, ओके। एच की लोकल मशीन। करंट वर्जन। सर प्रोडक्ट की तो मतलब एक्टिवेट करते हैं ना विंडोज को, वो भी एक टाइप का पासवर्ड हो गया है, एक काइंड ऑफ। रीबूट करके हम क्या बोल रहे हैं उसे, बायोस में जाके हम प्रोडक्ट की यूज करके फिर से उसे रीजनरेट कर सकते हैं। तो और कहीं पे पासवर्ड नहीं लगा रखा आपने किसी फाइल फोल्डर पे? नहीं सर। ओके, तो यहाँ पे है स्कैन के बगल में जो एरो है वहां पे जाके इसकी लोकेशन चेंज करो, देखो कुछ और चीजें हैं क्या। सी ड्राइव है और मेरा दूसरा ड्राइव। ठीक है, किसी और ड्राइव पे जाओ, सी पे जाओ। moved or deleted, are you sure you want to continue? Yes कर दो, कोई दिक्कत नहीं। export to file, it is not showing anything. कर रहे सर अब इसके। Okay, इसके बगल में देखो, अप साइड में there is an option for window login password, go for that. Yeah, can. Okay, it is empty है। providing, no, NT hashes are provided here. Administrator guest. Somehow we can go through those hashes also, okay?
The rainbow table is available. Generate rainbow table. Go for the generate rainbow table. Please wait. सर रेनबो टेबल लेता है सिस्टम। ये भी एक तरीके का पासवर्ड हैशिंग टूल ही है, ठीक है, क्रैकिंग टूल ही है, जिसमें एक नहीं पूरा सर, टेबल जनरेट होता है। हाँ क्रैक तो नहीं सर, मतलब ये जो टेबल्स बनाते हैं वो दूसरे पासवर्ड क्रैकर यूज करते बेसिकली यही होता है। हैं। हाँ वही है जनरेट सर। करो एक बार, देखो क्या होता है। इससे सिस्टम जाएगा सर, और करता हूँ सर। रिस्क कहाँ रिस्क मत लो, रिस्क मत लो, कहीं कुछ और चेंज हो गया तो। अरे कोई नहीं, कुछ नहीं कोई होगा। बात, कोई बात। हम लोग को रिस्क लेने की आदत है। हो गया सर। वहाँ पे जहाँ पे आपने सेव किया था देखो, फाइल सेव हो गया ना। लोकेशन, गो फॉर द लोकेशन। ये है सर आरटीसी फाइल है वो, रेनबो टेबल आगे कुछ रहता है उसका फाइल टाइप। MD5 न्यूमेरिक ऑटो ट्रिक, ओपन इट। नोटपैड नोट। एंड दो सर। Mm, सर this रेनबो is टेबल also है। not a hash function so that it can be converted into it, but it's something another thing. Just open it once again. There are some codes written over there. Okay, we have to fetch that one. Like, open it, maximize it. पता नहीं सर कौन क्या लिखा, समझ नहीं रहा। नहीं, इन्हें पता है, ये एक्चुअली इस फॉर्म में लिखे ही रहते हैं कि समझ में नॉर्मल नहीं बंदा आया। ना समझ पाए, ठीक है, बट इसमें ही लिखा है वो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही समझेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसे कन्वर्ट करना होता है। देयर आर सम लेटर्स are there, basically we have to fetch for that. Stop at up one place, stop one place, yeah. FRS, there are some date times which are available in this also. Okay, leave it, cross it, delete this. So I think password section is also clear for everyone. यस सर। After that, there is one file name search. So here we can say search directly some file if it is required. Okay. जी में करते हैं ना सर, क्या सर्च करें सर? इंस्टॉलेशन Okay. मीडिया। ठीक है. यस Go सर। for the then deleted file search. Just provide इसमें the डेट path. डेट एक्सेस भी आ रहा था डिलीट इस सर अभी फाइल क्या पे। किया हमने, MD5 ना। सर अभी जो फाइल देखी उसमें डेट एक्सेस भी आ रहा था, इसका मतलब वो इसमें आगे जाइए, डेट क्रिएटेड, डेट एक्सेस। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टीज में वैसे भी आ जाता है ना। हाँ, वो मेन नहीं है, उसके आगे साइज, एट्रीब्यूट और क्या चीजें दिखा रही है। ये तो लिखा है प्रो, इसमें मिलेगा ही नहीं। इसमें कुछ नहीं दे रहा, और हाँ, हैश सेट भी नहीं दे रहा इसका। डिलीटेड So basically फाइल्स। कोई पर्टिकुलर फाइल, अगर if you want to search any particular file, you can go for file name search. Okay, it is crashed. सर 1 2 3 डिलीट किया था ना अभी। 1 3.tx, 1 2 3.tx। वो आपने लोकेशन नहीं दिया है ऊपर, डिवाइस टू स्कैन, या किस में होगा सर? सी था ना, तो सी, विंडोज सी, आई थिंक इसमें होगा। टी में था तो पार्टीशन 0 होगा। हाँ सर, पार्टीशन। Okay, wait for it. सर फाइल के रही, सर फाइल लिस्ट में होगा ना, फाइल लिस्ट, अभी वो थंबनेल्स। अभी वो सर्च कर रहे हैं। अभी वो, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर सर्च हो रहा है।
के लिए सर, इस स्कैन के लिए सर मेरे को वो सही लगा, रेड लाइन। एक बार जब तक ये स्कैन हो रहा है तब तक रेड लाइन ओपन करके दिखा दो सबको हाउ इट वर्क। और किसी ने किया था? डिड एनीवन हु गो फॉर दिस रेड लाइन? नहीं, रेड लाइन तो आपने कब बताया सर? सेल्फ स्टडी दिए। मैंने टूल्स बताए थे आपको ढेर सारे, इसमें मैंने रेड लाइन भी बताया, उस पर मैंने बोला था कि इसको आप खुद से सर्च करिएगा, ठीक है। एक यही टूल बताया था खुद से सर्च करने के लिए। ओके, रेड लाइन, हाँ हाँ कल बताया। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो रेड लाइन सर बेसिकली मेमोरी फॉरेंसिक टूल होता है। ठीक है। इसमें 3 मोड होते हैं, स्टैंडर्ड कलेक्टर, कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टर, आईओसी सर्च कलेक्टर। ठीक है। एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमको हमेशा ये मोड के लिए जाना चाहिए, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टर। क्योंकि सर ये मोड में ना आपको हर चीज सर्च करेगा, आपको एग्जैक्टली, दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सिस्टम। डीप सर्च करेगा वो। will give you the प्लस hash functions and all. प्लस इसमें वो आपका आईओसी वाला सर्च है ना, जो लास्ट ऑप्शन, वो भी करेगा इसमें। हम्म, सो वो बेसिकली क्या होता है सर, एलवेयर के जो सिग्नेचर्स होते हैं वो उनके लिए सर्च करते हैं। ओके। और ये सर ये हमको जो चाहिए, हमको विंडोज के लिए चाहिए, हमको मैक के लिए चाहिए, हमको बेस्ट लिनक्स पार्ट के लिए, इसका यही है कि हमको ये आपके सिलेक्ट करना तीनों होता है। चीज के लिए, तीनों चीज में ये काम आता है, ठीक है। और ये सेव कलेक्टर डायरेक्टरी। अब एक प्रैक्टिस क्या होती है कि कलेक्टर को हमेशा एक रिमूवेबल ड्राइव में सेव करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे अभी सर कॉम्प्रिहेंसिव किया था तो वो तो हैंग हो गया, फिर मैंने स्टैंडर्ड किया। स्टैंडर्ड क्या करता है, स्टैंडर्ड से बेसिक सिर्फ मेमोरी स्कैन करेगा, बेसिक, और कुछ नहीं करेगा वो। इसमें एक सिस्टम, एक वो मशीन का इन्फॉर्मेशन निकालेगा और कुछ नहीं, मतलब सिर्फ मिनिमल इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको। ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाओ सबको। डेमोन्स्ट्रेशन हैंग हो जाएगा सर फिर से। सो मैं बता दे सर मैंने किया क्या, मतलब फिर मैंने कलेक्टर्स बनाया अपनी ड्राइव में, ये स्टैंडर्ड रेडलाइन कलेक्टर। उसके बाद हमको क्या करना होता है, रीडमी टेक्स्ट में लिखा है, ऑन विंडोज मशीन रन द रेडलाइन ऑडिट बाइट फाइल। ये जो फाइल है हमको इसको रन करना होता है, ठीक है। और कुछ नहीं करना हमको। एंड इसमें लिखा भी है प्रिफरेबली फ्रॉम अ रिमूवेबल डिस्क। तो इसका क्या है, अगर मैंने विंडोज का करेक्टर बनाया तो मैं कोई भी विंडोज मशीन में डाल के ये रन करूंगा तो वो उसका स्कैन करना शुरू कर देगा, और वो यहाँ सेव होगा। ठीक है। हर एनालिस्ट का एक नया सेव होगा, और एक बार ये हो गया तब मैं फाइल को उससे डिटैच करके अपने सिस्टम में ला सकता हूँ। और मैं अपने सिस्टम में मेरे को कुछ नहीं, बस इस पर क्लिक करना है, और वो जो भी एनालाइज किया उसने वो बताएगा वो। ओके, तो क्लियर है सबको ये इसके बारे में? समझ में आ गया अभी रेड लाइन क्या कर रहा है? अभी मैंने स्टैंडर्ड किया था तो उसने सिर्फ मशीन इन्फॉर्मेशन बताएगा कि मेरे पास क्या क्या है, मशीन क्या मशीन है, कौन सा विंडो यूज कर रहा हूँ, और सिर्फ प्रोसेसेस बताएगा कि क्या क्या प्रोसेसेस है। गो अब फॉर द डीप थर्ड वन, हायरार्किकल प्रोसेसेस। हेरेर प्रोसेस मतलब एक एक मेन प्रोसेस के अंदर कितने सब प्रोसेस चल रहे हैं वो ठीक है, बताएगा, ये आपके सिस्टम। मेन बेसिकली रजिस्ट्री से रिलेटेड ये सारी चीजें देता है, ठीक है। अभी सर डीप स्कैन का तो क्या था सर, वो 2 GB हुआ, उसके बाद पीसी हैंग हो गया था, 3 घंटे से लगा हाँ, रहा था, वो हो जाएगा। तो वो बंद बेसिकली कर दिया था फिर काफी मैंने। हार्ड टूल है ये, तो इसके लिए ग्राफिक कार्ड अच्छा हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। सो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्राई करिए। आपको मैंने बहुत सारे टूल्स बता दिए हैं फॉर विंडो फॉरेंसिक। ओके, आई जस्ट टोल्ड यू टू मेनी टूल्स रिलेटेड टू विंडो फॉरेंसिक, so it's a request to everyone, so just try by your own, and if you get any problem related to that you may ask for that. Okay, so this is the नहीं wizard tool सर, which इसमें एक और इसमें नीचे है ना, प्रोग्राम आर्टिफैक्ट्स। क्योंकि हम फॉरेंसिक्स में आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, इसमें क्या दिखा रहा है ये प्रोग्राम आर्टिफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट्स क्या होता है सर, exe फाइल्स या DLLs? इट्स अ कलेक्शन ऑफ। यहाँ पे exe फाइल्स दिखा रहे हैं सारे। हेलो, कौन डिस्कनेक्ट हो गया? या डिस्कनेक्ट तो मोना मैम, यू आर सेइंग प्रशांत। समथिंग? नहीं नहीं, मैं तो कनेक्टेड हूँ। आप कुछ बोल रहे थे शायद। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये प्रोग्राम आर्टिफैक्ट्स तो वही है ना जो हम फॉरेंसिक्स में वी कलेक्ट फ्रॉम द सिस्टम।
तो बेसिकली आर्टिफैक्ट में ये जो आर्टिफैक्ट लिखा हुआ है बस यही नहीं है, ये कुछ मतलब पर्सनल फाइल्स होती हैं, .exe फाइल्स हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्या समझ में आया? तो ये तो यूज केस डिजाइन हो गया, तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में आ गया। आर्टिफैक्ट फॉर फॉरेंसिक डालो, व्हाट आर प्रोग्राम आर्टिफैक्ट। एक मिनट आशीष, नीचे है ना, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफैक्ट। हाँ, इसके ऊपर 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 नहीं, ये जो पीपल आस्क में लास्ट वाला, इसमें लास्ट वाला, ये वाला। हाँ, आर्टिफैक्ट इंक्लूड्स आर्ट टूल्स, क्लोथिंग, वो कुछ और ही हो, वो कुछ और अच्छा, ही हो। ये रियल फोरेंसिक का है। नहीं, 5 टाइप। वो व्हाट वेबसाइट इज देखो कहाँ आर्टिफैक्ट्स पे। इन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज आर्टिफैक्ट्स इन प्रोग्रामिंग, ये वाला पहला वाला। पीपल डिजिटल आस्क लिखता हूँ। फॉर Foreign artifacts are, I think, left behind upon the activity of user. हाँ, यही मैंने कहा ना, ये तो हमारे काम के फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स है बेसिकली, ये है वही ठीक है, है। ये जो प्रशांति मैम बोल रही थी, यही उसका आंसर है कि however end user are generally not aware that these artifacts exist. Furthermore, unlike content, artifacts are difficult to access and manipulate. सिर्फ उनको ढूंढना मुश्किल है, लेकिन फुटप्रिंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं कोई फुटप्रिंट्स जरूर हाँ, अवेलेबल वो तो होंगे वहां पे, जरूर ठीक होगा। है। एक बार जो कंप्यूटर में गया है कहीं, तो उसका फुटप्रिंट आएगा ही आएगा। वही है ना सर की, क्योंकि आप सारे सबूत नहीं मिटा सकते, इस पे एक कहावत थी ना। सर उस टाइम में मोस्टली एक अटैकर देखता है कि वो रिसेंट कौन से सबूत मिटा सकते हैं, वो इतना एग्जैक्टली। डीप नहीं देखता हो। अपनी लॉगिन्स मिटा देगा ना, कौन सी फाइल एक्सेस की, कहाँ कहाँ गया, वो मिटा देगा, लेकिन जो कंप्यूटर में घुसा वो फुटप्रिंट तो आएगा ही आएगा ना। एग्जैक्टली। डिलीटेड फाइल सर्च सर लगता ज्यादा टाइम लगेगा। लीव इट, स्टॉप कर दो इसे, ठीक है, फालतू में हमारे सीपीयू खा रहा है। एक फाइल सर्च करनी है उसके लिए इतना टाइम। सर रजिस्ट्री व्यूअर है इसके रजिस्ट्री व्यूअर लिए। करो उसके बाद, हाँ, तो इसमें रजिस्ट्री ही व्यू करेगा आपका, ठीक है। अच्छा। सर वो तो रजिस्ट्री एडिटर से भी देख सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, आप उससे भी देख सकते हो। रजिस्ट्री एडिटर भी एक टूल है, हाँ, हाँ। ठीक है, और आप रेजिडेट करके डायरेक्ट देख सकते हो, कल हमने और पढ़ा था इसमें इससे रिलेटेड। नीचे लेफ्ट साइड पे नीचे है रिमोट एक्विजिशन, ये क्या होता है? हाँ, ये और नीचे ये रिमोट एक्विजिशन में भी मतलब कोई मैं, बाहर से जो एक्सेस हाँ, किया ना, जैसे अभी आपने हम्म, शेयर किया स्क्रीन, तो वो भी रिमोट एक्विजिशन होता है। नहीं वो नहीं Like if होता। you allow somebody to use your screen, like we are doing in the class, that is also a remote. तभी तो नीचे दिखा रहा है remote PC. Remote नहीं, acquisition is somebody रिमोट trying to. एक्विजिशन मींस यहाँ पे क्या है कि आप किसी और की क्रेडेंशियल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उसके, फॉर एग्जांपल जो थर्ड सेक्शन स्टेप 3 दिखा रहा है आपको, एंटर रिमोट पीसी क्रेडेंशियल। आप जो बोल रहे हो जो मेरे पीसी पे करोगे, वो भले डेटा मेरे पीसी पर रहेगा, लेकिन आप शेयर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि मैं सिर्फ स्क्रीन कंट्रोल करने दे रहा हूँ। Okay. और रिमोट में क्या हाँ, होगा, हम that is उसके true. पीछे परफॉर्म करने के बाद हम उसको लेकिन वो ले remote, सकते हैं अपने लिए। ठीक yeah, है। but I know if I access your screen, I will not be able to use your data. But that is a remote. वो इस footprint में दिखाएगा remote acquisition किस चीज के लिए हुआ, तो मेरा स्क्रीन एक्सेस के लिए दिखाएगा ना फिर। हाँ मतलब वो तो है, राइट, वो भी रिमोट So एक्सेस where ही is है। it showing? Like currently when Ankit sir were using your screen, it should show here, no, remote acquisition में। अब वो जूम के, मेरे ख्याल से जूम के उसमें दिखाएगा, वो जूम के Okay. क्या Or maybe बोलते हैं। in the paid version. यस। तो बेसिकली ये रिमोट एक्विजिशन का सीन है, इसे हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कल मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता है फिर से ये, ठीक है। सर सर बाकी तो यही है बस, मेरे ख्याल से मेमोरी पूरी खा जा रहा है एक बार। बाकी क्या, आप सब तो मिल गया, आप क्या चाहिए? सर ये लाइव एक्विजिशन, ये इसे, इसको सर चलाते सर वो रैम एरर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, केस नेम, तो क्या क्या कह रहे हो आप, इसमें क्या बोल रहे हो? मैंने बोला सर बाकी देख ले, ये देखना बचा है बस। कौन सा है ये, इसको, ऑटो ट्रैक? हाँ सर। तो इसमें क्या है? सर आप ही बोल रहे थे ना, स्टार्ट स्कैन। नहीं, इसको ये बहुत टाइम लेगा। टाइम का सिस्टम ही बंद हो जा रहा है। हाँ, और ये जो लास्ट है ना, ईमेल व्यूअर, इस पे जाओ एक बार।
सिलेक्ट अ फाइल टू ओपन। ईमेल फाइल्स तो नहीं है सर मेरे पास। ओपन करो एक बार। नहीं, सर फाइल है, नहीं पूछ रहे हैं। सर है ही नहीं फाइल PST कुछ करके। है नहीं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लेके आया? अब वो तो डेस्कटॉप है ना सर, वो डेस्कटॉप पे रन करो तो रिसेंट फाइल अभी डेस्कटॉप पे अच्छा लाएगा मेरे ठीक को। है, हाँ रिसेंट फाइल खुल जाती है। तो बेसिकली ईमेल आप में है नहीं, तो ईमेल व्यू नहीं करा। और क्या है कुछ नीचे है इसमें? सिग्नेचर, सर्च इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, ईमेल व्यूअर, फाइल हैशिंग, ठीक है, कंपेयर रजिस्ट्री देख लिया, एनालाइज शैडो कॉपी, एनालाइज शैडो कॉपी। तो शेडो कॉपी तो मेरे ख्याल इट्स से आस्किंग फॉर अगेन some copy, okay, means if you are already having any image of any folder file, so you can maybe analyze here. शेडो कॉपी तो वही करता है ना सर, वो जो आप बोलते हो एक्यूरेसी ढूंढने का काम मेरे ख्याल से। कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो काम आता है ना, वो ऊपर के वो जो थे एक्टिविटी वाला जो सीन था वो है, ठीक है। पासवर्ड आ जाता है इसमें काम, डिलीटेड फाइल सर्च आ जाता है, और ऑटो ट्रैक, उसके बाद फॉरेंसिक इमेज क्रिएट करना, ठीक है। ये सारी चीजें जिसमें प्रॉपर काम आती हैं। ये क्या सर, हम कैश भी So is it clear to both of you? यस सर। Ma'am, it is clear to you? यस यस। So ठीक है, आप लोग इसे ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें और भी चीजें फेच करना, सर्च करना, देखना कुछ और मिलता है तो बताना, ठीक है। हाँ सर सर वो एक और क्लिक करो आशीष, थंब कैश रिव्यूअर, हाँ, क्योंकि इसमें कैश कैश मेमोरी, इसमें सारा कैश मेमोरी जो भी होगा वो दिखाएगा। नहीं आ स्कैन रहा कैन है। स्कैन करो कोई फोल्डर। क्लिक नहीं, ऑन ये दैट, तो फिर बहुत टाइम ले लेगा। ऑल यूजर। ये रही आपकी कैश एंट्रीज, हाँ, हम कैश आईडीज, ठीक है। राइट कैश स्क्रॉल करो, राइट स्क्रॉल करो, नीचे बार से, नीचे वाले बार से राइट स्क्रॉल करो। नहीं, नीचे वाले राइट स्क्रॉल, राइट, अच्छा हाँ। राइट स्क्रॉल, लोकेशन दिखा रहा है ना। लोकेशन अब ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको इतना फेच नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, आप डायरेक्ट यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो और डायरेक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी। लोकेशन के थ्रू आप सर इंटर हो इसका, सकते इसमें देखो ना, बीच में फाइल नेम, आइटम, इमेज, ये सब मिसिंग है क्योंकि ये पेड वर्जन में होंगे, ये असली डिटेल है। हैं। एग्जैक्टली, जो मेन डिटेल्स है ना वो कहीं ना हाँ, कहीं इसमें हाइड करा नहीं, हुआ है। कम से कम इसका मतलब इसमें डेट मॉडिफाइड, ये सब कुछ एक्चुअल डिटेल में आ रहा है, तो ये पेड वर्जन में होंगे सब, जो अभी ब्लैंक दिख रहे हैं वो सब पेड वो वर्जन में सारे होंगे। पेड वर्जन में होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको आईपी एड्रेसेस भी मिल जाएंगे, जिससे अगर कोई नेटवर्क इसमें एंटर किया है, वो था ना एक नेटवर्क वाला सीन था ना इसमें, कहाँ गया? पता नहीं सर, सिस्टम इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क इन्फो नहीं, रजिस्ट्री, ये नहीं था, इधर ही लेफ्ट साइड में ही पैनल में था। या इसमें वो है ना डब्ल्यू लैन नीचे। सर वो तो पासवर्ड ये तो पासवर्ड ये तो तुम्हारा वो था। ऑथेंटिकेशन टाइप भी बता रहे सर, मतलब किसी को उस हिसाब से चलना है तो। आई थिंक एक पोर्शन देता है जिसमें आपके नेटवर्क से जो भी कनेक्ट रहते हैं वो भी बता देते हैं। ठीक है, इस पर सर्च करना, और भी चीज़ें अगर नहीं मिलती है तो बताना, ठीक है। यस सर। ओके, सो मैम कोई इशू आपको, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, दिस इज गुड। अब कल क्लास क्या होगी? कल का क्लास तो आज ही कराने वाला था मैं, आज लिनक्स कराने वाला था, बट इसी में समय टाइम चला गया पूरा। तो कल हम लिनक्स फॉरेंसिक करेंगे, ठीक है। लिनक्स फॉरेंसिक, यस सर। लिनक्स तो होगा ना तुम्हारे में, है लिनक्स? है ना सर। नहीं, मैंने तो इंस्टॉल नहीं किया अभी। तो है ना लिनक्स सर। से फैमिलियर है आप मैम ना? सुना है इसके बारे में? नॉट मच, नॉट मच। नॉट मच, ओके। सुना तो बहुत है, हाँ, आई नो द कंपैरिजन, लिनक्स, विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लेकिन बेसिकली कमांड मैंने बेस्ड यूज टूल नहीं होता है, ठीक है। पूरा प्लेटफॉर्म किया। कमांड बेस्ड होता है, तो इसमें जो भी चीजें फेच करेंगे हम, जो भी चीजें सर्च करेंगे, सारे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल इंफॉर्मेशंस, वो सारी हम कमांड के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। यस सर। तो ठीक सर है। एक